Hari Om. So, just a few weeks ago, I was listening about this news that in India, the government has made Sanskrit as one of the important languages to be studied in the school. And I was just thinking about it. I love Sanskrit, but I was just thinking about, does it make sense to enforce something like this in our Indian setting in India? So, and then I thought, why not share some opinion? And the beauty of India is that there is variety of opinion, really democratic. Like people share all different kind of opinions, and then you practice what you want and what your opinion is. But sharing opinion is, I think, important. For me, it's important because I want to share some scientific evidence, data that exists in favor of Sanskrit and how it affects something called Sanskrit effect. But I must say that it's predominantly driven by bilingualism. Bilingualism is known to have a positive impact on the human brain. But is there something different and unique about Sanskrit? Um, let's leave that question to the scientists to tackle. Scientists who are really investigating this topic, like colleagues at National Brain Research Center in Manesar who collaborated, Dr. Nandini Singh, and who collaborated with some international collaborators and presented some data about what we call Sanskrit effect. So let's talk about it. So as I said, I would like to discuss a topic that lies at the intersection of neuroscience, education, language, and India's civilizational heritage. The question before us is not merely that should children learn Sanskrit. The deeper question is, what kind of minds do we wish to cultivate in the next generation of India? And for that reason, the world. Like we want the world to have a very good generation that's driven by ideals and good deeds and is virtuous. Do we wish to produce young people who can memorize facts for examination, or do we wish to cultivate attention, memory, reasoning, self-discipline, linguistic flexibility, and intellectual curiosity? Modern neuroscience suggests that the brain develops according to how it is challenged and trained. Modern neuroscience suggests that the brain develops according to how it is challenged and trained. Ancient India, I think, understood this principle long before the MRIs and functional MRIs existed. The Gurukul system was not merely a system of information transfer, it was a system for training the mind. आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो न्यूरोसाइंस, शिक्षा, भाषा तथा भारत की सभ्य सम्यतागत विरासत को एक सूत्र में जोड़ता है। प्रश्न केवल इतना नहीं है कि क्या बच्चों को संस्कृत पढ़नी चाहिए, वास्तविक प्रश्न यह है कि हम भारत की अगली पीढ़ी का मस्तिष्क कैसा बनाना चाहते हैं। हम कैसा बनाना चाहते हैं, हम भावी पीढ़ी का मस्तिष्क, उनके विचार किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। यह प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या हम केवल परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी चाहते हैं या ऐसे युवा चाहते हैं जिनमें ध्यान, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, आत्मानुशासन, भाषिक क्षमता और जिज्ञासा हो? आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि मस्तिष्क उसी दिशा में विकसित होता है जिस दिशा में उसका अभ्यास किया जाता है। भारतीय परंपरा इस तथ्य को सदियों पहले समझ चुकी थी। गुरुकुल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह मन के निर्माण का केंद्र था। अद्य वयम तस्मिन् विषये चिन्तयामः यः न्यूरोविज्ञानं, शिक्षां, भाषाशास्त्रं तथा भारतस्य सांस्कृतिक परंपरां संयोजति। प्रश्नः केवलं नास्ति प्रश्नः केवलं नास्ति प्रश्नः केवलं नास्ति बालकाः संस्कृतं पठेयुः वा? बालकाः संस्कृतं पठेयुः वा?
अपि तु प्रश्नः अस्ति भारतीययुवजनानां मनः कथं निर्मीयेत्। हम उनका मन कैसा बनाएं। केवलम प्रशिक्षण केवलम परीक्षा सफलतायै शिक्षाम इच्छामः वा उत स्मरण शक्ति युक्तान ध्यान संपन्नान तर्कशीलान आत्मसंयमिनः जिज्ञासून च युवानः इच्छामः। आधुनिक न्यूरो विज्ञानम वदति यथा प्रशिक्षणं भवति तथा मस्तिष्कस्य विकासः भवति। एतदेव भारतीय परंपरा पूर्वमेव अवगतवती। गुरुकुलम न केवलं ज्ञान प्रदानस्य स्थानमासीत् अपितु मनोनिर्माणस्य केन्द्रम् आसीत्। A landmark study, I'm going to talk about Sanskrit effect briefly. A landmark MRI study conducted by neuroscientist James Hartzell and Dr. Nandini Chatterjee Singh examined the brains of traditional Vedic scholars. These scholars spent years memorizing tens of thousands of Sanskrit verses with remarkable precision. The MRI scans revealed increased gray matter density and cortical thickness in the brain regions associated with memory, attention, language, and cognitive control. And this is not mysticism. This is neuroscience. The brain changes according to sustained practice. Neuroscientists call it neuroplasticity. जेम्स हार्टजेल और नंदिनी चटर्जी सिंह, डॉक्टर नंदिनी चटर्जी सिंह द्वारा किए गए प्रसिद्ध एमआरआई अध्ययन में वैदिक पंडितों के मस्तिष्क का परीक्षण किया गया। इन विद्वानों ने वर्षों तक हजारों संस्कृत मंत्रों और श्लोकों का स्मरण किया था। अध्ययन में स्मृति, ध्यान, भाषा तथा संज्ञानात्मक नियंत्रण से जुड़े क्षेत्रों में संरचनात्मक वृद्धि देखी गई। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। अभ्यास मस्तिष्क को बदलता है, इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। संस्कृत में बताएं इसी बात को तो इस प्रकार कहेंगे कि जेम्स हार्टजेल महोदयेन डॉक्टर नंदिनी सिंह महोदया च कृतम अध्ययनम वैदिक पंडितानां मस्तिष्कं परीक्षितवान्। एते विद्वांसः सहस्रशः मंत्रान् श्लोकांश स्मृत्वा पठन्तः आसन्। अध्ययने स्मरण, ध्यान, भाषा तथा संज्ञान नियंत्रण संबद्धेषु प्रदेशेषु वृद्धि दृष्टा। एतत् न चमत्कारः, एतत् न्यूरोविज्ञानम्। अभ्यासेन मस्तिष्कं परिवर्तते, एषः न्यूरोप्लास्टिसिटी इति कथ्यते। तो संस्कृत में मैं क्यों पढ़ रहा हूं? एक तो सेकेंडरी गेन यही है कि भाषा से जो है मस्तिष्क का विस्तार होता है। द संस्कृत इफेक्ट इज only part of the story. Another major discovery of modern neuroscience concerns bilingualism. Researchers such as Alan Bialystok, my colleague Dr. Abu Talebi, and others have demonstrated that individuals who regularly use more than one language often show enhanced executive function, attentional control, and cognitive flexibility. Speaking multiple languages forces the brain to constantly select, inhibit, switch, and adapt. Speaking multiple languages forces our brain to constantly select, inhibit, switch, and adapt. In other words, bilingualism becomes a lifelong exercise for the brain. For India, this is a tremendous advantage. हमारे देश में सब लोग कम से कम 2 भाषा तो बोलते ही हैं, 3 भी बोलते हैं, अधिक बोलते हैं. Many Indian children already grow up speaking a mother tongue, Hindi or another regional language, and English. If Sanskrit is added thoughtfully, India may possess one of the richest linguistic training environments in the world. संस्कृत प्रभाव कहानी का केवल एक भाव है. संस्कृत प्रभाव, संस्कृत इफेक्ट कहानी का केवल एक भाग है. आधुनिक न्यूरोसाइंस का दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष द्विभाषिकता से जुड़ा है, बाइलिंगुअलिज्म से जुड़ा है. एलन बैलिस्टॉक तथा अन्य वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि अनेक भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों में ध्यान, निर्णय क्षमता और मानसिक लचीलापन अधिक विकसित होता है. जब हम अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं तब मस्तिष्क को लगातार चयन, परिवर्तन और अनुकूलन करना पड़ता है. द्विभाषिकता मस्तिष्क का आजीवन व्यायाम बन जाती है. भारत के लिए यह एक महान अवसर है. अधिकांश भारतीय बच्चे पहले से ही मातृभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं तथा अंग्रेजी सीखते हैं. यदि संस्कृति की धरोहर हमारी संस्कृत को भी जोड़ा जाए तो भारत विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषाई प्रशिक्षण प्रणालियों में से एक बन सकता है.
संस्कृतस्य प्रभावः कथायाः केवलम् एकः भागः अस्ति। आधुनिक न्यूरोविज्ञानस्य अन्यः महत्वपूर्णः निष्कर्षः द्विभाषिकतां संबध्नाति। क्षम्यताम् क्षम्यताम्। आधुनिक न्यूरोविज्ञानस्य अन्यः महत्वपूर्णः निष्कर्षः द्विभाषिकतां संबध्नाति। एलेन ब्यालिस्टॉक महोदयादयः दर्शितवन्तः यत् बहुभाषिणः जनाः अधिकां ध्यानशक्तिं, निर्णयक्षमतां, मानसिकलचीलतां च प्रदर्शयन्ति। अनेकभाषाप्रयोगः मस्तिष्कं निरन्तरं प्रशिक्षयति। अतः द्विभाषिकता मस्तिष्कस्य आजीवन व्यायामः भवति। द्विभाषिकता मस्तिष्कस्य आजीवन व्यायामः, लाइफ टाइम एक्सरसाइज भवति। भारतस्य कृते एषः महान् अवसरः अस्ति। यदि मातृभाषा अंग्रेजी तथा संस्कृतम् अपि शिक्षयेत् तर्हि भारतं विश्वस्य श्रेष्ठतम भाषिक प्रशिक्षण व्यवस्थां निर्मातुं शक्नुयात्। So why Sanskrit matters for us in India? So let us be clear. The purpose of promoting Sanskrit is not to oppose any other language. It is not to reject English. It is not to diminish the regional languages. India does not need less linguistic diversity. India needs more. Sanskrit should be viewed as an additional intellectual resource. Why? Because it connects young Indians with Vedas, Upanishads, Mahabharata, Ramayana, Ayurveda, yoga, mathematics, astronomy, grammar, logic, and philosophy. It gives direct access to thousands of years of accumulated knowledge that exist in our Indian texts in Sanskrit. So Sanskrit gives access, the knowledge of Sanskrit gives access to the accumulated language, intellectual, Sanskrit-related intellectual heritage. It gives access to the thousands of years of accumulated knowledge associated with, accumulated in Sanskrit language. A civilization that forgets its intellectual heritage becomes dependent upon others to define its future. स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि संस्कृत को बढ़ावा देने का अर्थ किसी अन्य भाषा का विरोध नहीं है, यह अंग्रेजी का विरोध का विषय नहीं है, अन्य भारतीय भाषाओं को कमजोर करने का प्रयास नहीं है। भारत को कम भाषाओं की नहीं, अधिक भाषाई समृद्धि की आवश्यकता है। संस्कृत एक अतिरिक्त बौद्धिक संसाधन है। यह वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद, योग, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, तर्कशास्त्र और दर्शन तक सीधी पहुंच प्रदान करती है। जो सभ्यता अपने बौद्धिक स्रोतों को भूल जाती है वह अपने भविष्य को दूसरों के हाथों में सौंप देती है। स्पष्टतया अवगंतव्यम संस्कृत प्रोत्साहनम न कस्यचित् भाषाया विरोधः, न च एतत् आंग्ल भाषाया विरोधः, न च प्रादेशिक भाषाणाम् अवमूल्यनम्। भारतस्य आवश्यकता न्यून भाषिकता नास्ति, अपितु अधिका भाषिक समृद्धिः। संस्कृतम् अतिरिक्त बौद्धिक संपत्तिः अस्ति। एषा वेदान्, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतम्, आयुर्वेदं, योगं, गणितं, व्याकरणं, तर्कशास्त्रं, दर्शनं च प्रति प्रत्यक्ष मार्गं ददाति। या सभ्यता स्वस्य ज्ञान परंपरां विस्मरति सा स्वभविष्यं परेषां हस्ते समर्पयति। दूसरे के हाथ में अपना भविष्य डाल देती है। इसलिए हमें अपनी सभ्यता का ज्ञान होना चाहिए और उसे जोड़ने का जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है वह है भाषा का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान। जब भाषा का ज्ञान होगा तो हम बिना किसी इंटरप्रिटेशन के भाषा को स्वयं समझ सकेंगे और उसके अर्थ को समझ सकेंगे। और संस्कृत साहित्य में बात ऐसी है कि एक ही शब्द के अनेक अनेक प्रकार के अर्थ निकलते हैं। जिस प्रकार से शब्द की व्युत्पत्ति होती है उस प्रकार से तो भाषा का ज्ञान आवश्यक है, उससे लाभ ही होगा। और शास्त्रों का अध्ययन करते समय उसके विभिन्न अर्थों का, शब्दों का जो विभिन्न अर्थ हैं, जो विभिन्न भाव हैं, वो हमें समझ में आएंगे, जो कि दूसरे भाषा में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है समझने में।
दूसरे भाषा में जब हम उसको पढ़ते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैंने पहले विभिन्न प्रकार की बातें कही हैं, जैसे जब हम पूजा करते हैं तो यह मंत्र पढ़ते हैं, पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बायाभ्यंतरः शुचिः। और जब पूजा करते हैं तो इसका उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि मंत्र पढ़ लिया और पानी गिरा लिया। इसके पीछे भाव यह है कि जब हम बार बार उस विजुअल इमेजरी को याद करते हैं तो एक तो उसका मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और बाहर और अंतर, बाहरी सुंदरता, बाहरी स्वच्छता ही नहीं, हमें अंदरूनी स्वच्छता, अंदरूनी सुंदरता की भी आवश्यकता है। और अगर हम रोज इस प्रकार के भाव से पूजा करें तो उसका हमारे ही मानसिक संतुलन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर मन को अंदर से हम स्वच्छ बनाते हैं, सुचिता लाते हैं उसमें, तो उसका हमारे, और यह ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब हम भाषा को जानें। अन्यथा क्या होगा कि पंडित जी आके मंत्र पढ़ के चले जाएंगे और हम लोग पूजा कर लेंगे, लेकिन हमें उसके पीछे का भाव नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए भाषा का ज्ञान अति आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। और हमारे पास बहुत बड़ा रिसोर्स है, बहुत बड़ी संपदा है, बहुत सारे पुस्तक के ग्रंथ है, पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाएगा, जीवन निकल जाएगा पढ़ते पढ़ते शास्त्रों को। और तो भी हमको उसका पूरा ज्ञान, और ये एक प्रकार से गर्व की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे भारत के पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले इतनी गहनता के साथ विभिन्न प्रकार के विषयों पे चिंतन किया और उसके ऊपर पुस्तक लिखी। पुस्तक भी इस प्रकार लिखी कि वो आज तक चली आ रही है। बहुत कुछ गुम भी हुआ है इस बीच में, लेकिन इतने समय से चली आ रही है। और अगर हम उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता है। So, so what is the vision for the future? Imagine an India where every child learns a mother tongue for identity, English for global communication, Sanskrit for civilizational literacy. Such a generation would be locally rooted, nationally connected, and globally competitive. And this is not merely language education, this is nation building. कल्पना करें कि उस भारत की जहां प्रत्येक बालक सीखे मातृभाषा अपनी पहचान के लिए, मराठी सीखे, मराठी सीखे, कथामा कसा आहे, काय करतो आहे, मराठी में बोलने आए, अंग्रेजी में वैश्विक संवाद करे। दुनिया में कहीं भी किसी से बातचीत करनी है तो अंग्रेजी में बात करे, हे हाउ आर यू। और संस्कृत अपनी सभ्यतागत चेतना के लिए सीखे, भगवान कथम अस्ति। ऐसी पीढ़ी स्थानीय रूप से जुड़ी रहेगी अपने जड़ों से, राष्ट्रीय रूप से एकीकृत होगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होगी। यह केवल भाषा शिक्षा नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण है। कल्पयन्तु, कल्पना करें, प्रत्येकः बालक अधीयत मातृभाषा मातृभाषां स्वपरिचयाय, आंग्ल भाषां वैश्विक संवादाय, संस्कृतं सांस्कृतिक साक्षरतायै। एवं जातः युवा स्वमूलेषु स्थितः राष्ट्रे एकीकृतः विश्वे स्पर्धाक्षमः च भविष्यति। एतत् केवलं भाषा शिक्षणं नास्ति, एतत् राष्ट्र निर्माणम् अस्ति। So the MRI scanner has shown us that the brain changes with discipline learning. Bilingualism has shown us that language strengthens cognition. एमआरआई ने हमें दिखाया है कि अनुशासित शिक्षा मस्तिष्क को बदल सकती है। द्विभाषिकता ने हमें सिखाया है कि भाषाएं संज्ञानात्मक क्षमता को सुदृढ़ करती है। भारतीय परंपरा हमें स्मरण कराती है कि शिक्षा केवल सूचना का हस्तांतरण नहीं, बल्कि चरित्र, ध्यान और प्रज्ञा का निर्माण है। यदि भारत भविष्य के वैज्ञानिक, विचारक, नव प्रवर्तक और नेतृत्वकर्ता तैयार करना चाहता है तो संस्कृत और बहुभाषिक शिक्षा को अतीत का अवशेष नहीं बल्कि भारत के भविष्य में निवेश समझना चाहिए। The wisdom of India reminds us that education is not merely the transfer of information, it is the cultivation of character, attention, and wisdom. If India wishes to build the next generation of scientists, thinkers, innovators, and leaders, then Sanskrit and multilingual education should not be viewed as relics of the past. They should be viewed as investment in the future of India, brain of India. Anushasat adhyanen mastiskasya
परिवर्तनम भवतीति एमआरआई दर्शयति। द्विभाषिकता दर्शयति यत् भाषा संज्ञान शक्तिं वर्धयन्ति। भारतीय परंपरा स्मारयति यत् शिक्षा केवलं सूचना प्रदानं नास्ति अपितु चरित्रस्य ध्यानस्य प्रज्ञायाश्च संवर्धनम्। यदि भारतः भावी वैज्ञानिकान् चिन्तकान् नवोन्मेषकारिणः नेतृञ्च निर्मातुम् इच्छति तर्हि संस्कृतं बहुभाषिक शिक्षा च अतीतस्य अवशेषौ न स्तः अपितु भारतस्य भविष्यमस्तिष्के निवेशरूपेण द्रष्टव्यौ स्तः। जयतु संस्कृतं, जयतु विज्ञानं, जयतु भारतम्। हरि ओम।